Hello students, today we will start chapter 3 mensuration of class 9 in which first topic is surface area of cube and cuboid. Surface area of cube and cuboid. First of all we will consider cuboid. This is cuboid whose length is L, breadth is D and height is L, H. First of all, curved surface area. Curved surface area, that is CS, इसकी इक्वल होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और कर्व सरफेस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। नाउ टोटल सरफेस एरिया that is TSC, this is equals to 2 into LP plus BH plus HL. Next, volume equals to length into breadth into H. Area of base equals to area of top. बेस का और टॉप का एरिया किसके इक्वल होगा? LB के इक्वल। दिस इज इक्वल्स टू LB। लेंथ ऑफ डायगोनल, क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H। नेक्स्ट वन इज क्यूब। In case of cube, length, breadth and height all are equal. L equals to B equals to H equals to A. इस केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा that is equals to 4A square. टोटल सरफेस एरिया होगा 6A square. वॉल्यूम होगा A cube. एरिया ऑफ बेस equals to area of top equals to A square, and length of diagonal is equals to root 3 into side. Now we will discuss exercise 13.1 based on these two, cube and cuboid. Exercise 13.1, question 1. First question, a plastic box has 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. एक प्लास्टिक बॉक्स है, इसकी डायमेंशंस दे रखी है हमें। लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर। अब इसको किसमें चेंज कर लें? 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते सेंटीमीटर बन जाएगा, दैट इज 150 सेंटीमीटर। 1.25 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बन जाएगा? 125 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर। इट वाज टू बी ओपन एट द टॉप। ये टॉप से क्या है? ओपन।
open from top. Then find the area of sheet required for making the box. Area of first part है area of sheet required for making the box. इस बॉक्स को बनाने में कितनी शीट लगेगी? शीट कहां कहां लगेगी? एक तो चारों होल्स पे CSA देन बेस, क्योंकि टॉप से तो क्या है ये ओपन है, तो CSA प्लस एरिया ऑफ बेस. CSA क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और बेस क्या होगा? L. एरिया ऑफ बेस है 2. L की वैल्यू 150, B की वैल्यू 125 और H की वैल्यू 65. 150 इंटू 125 that is 2 into 275 into 65 plus 150 into 125. ये सब सॉल्व करके आएगा हमारा 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो ये आएगा 54500 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 बाई 100 मीटर. That is 5.45 meter square. First part का आंसर. Then second part, cost of sheet used for it. If sheet measuring 1 meter square cost ₹20. अब इसी में आगे दे रखा है हमें cost of 1 meter square sheet equals to ₹20. Therefore, cost of 5.45 meter square sheet is equals to 20 into 5.45. इसको सोल्व कर लेंगे हम. 20 into 545 by 100, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा. 25 का 100, 5 109. तो इसका आंसर आएगा 109 रुपीस. Then question number 2. The length, breadth and height of room are 5, 4 and 3. Dimensions of room. Length L 5 meter. Breadth B 4 meter. And height H equals to 3 meter. Then find the cost of whitewashing the walls of room and ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square. हमें व्हाइट वॉश किस चीज को करना है? वॉल्स और सीलिंग को, यानी टॉप और वॉल्स. तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड. कौन कौन सा एरिया व्हाइट वॉश करना है? दैट इज CSA प्लस टॉप, एरिया ऑफ टॉप. सीलिंग, सीलिंग का मतलब टॉप. CSA 2 into L plus BH and area of top is LB. 2. L की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 3. 5 into 4, 2 into 9 into 3 plus 5 into 4. That is 54 plus 20, 74 meter square area to be white washed. अब इस white washing की कॉस्ट दे रखी है हमें. कॉस्ट ऑफ white washing 1 मीटर स्क्वायर एरिया. 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने कितना कॉस्ट है? ₹7.50. तो therefore cost of white washing
74 meter square area. This is rupees 7.50 into 74. इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा रुपीज 555 रुपए. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. The walls of a rectangular hole has perimeter 250 meter. रेक्टेंगुलर होल है हमारे पास. इसका पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हमें कितना दिया है? 250 मीटर. पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, फ्लोर कैसा होता है इसका? बेस. फ्लोर का मतलब बेस. और बेस कैसा होता है? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B. दिस इज 250. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसके बाद इसने दिया इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square. कॉस्ट ऑफ white washing, cost of white washing 1 meter square area कितना दे रखा है? ₹10. and total cost of white washing, total cost of white washing, total cost of white washing कर्ड सरफेस एरिया. और वॉल्स का मतलब कर्ड सरफेस एरिया. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपए और सीएसए को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट हमें दे रखा है इसमें ₹15,000. तो हमें इसकी हाइट बतानी है. इस रेक्टेंगुलर होल की हाइट कितनी होगी? देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपए हो गया और सीएसए का कॉस्ट कितना हो गया? 15,000. तो CSA ऑफ होल कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. अगर सपोज करो टोटल रेट 150 रुपए और 1 मीटर का कॉस्ट 15 रुपए, ये टोटल है और ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है. तो कितना एरिया प्रिंट होगा? 150/15 ना. मतलब जब भी टोटल कॉस्ट और 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रखा हो तो टोटल कॉस्ट बाय 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट वही एरिया रहता है जो हमने पेंट किया या व्हाइट वॉश किया. ठीक है. तो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना दे रखा है? 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपीस. दैट इज इक्वल्स टू 150. और सीएससी किसके इक्वल होता है? 2 into L plus B into H. Now using equation first से हम 2 into using equation first 2 into L plus B की वैल्यू 250. इसकी वैल्यू कितनी है? 250 into H equals to 1500. Then H equals to 1500 by 250. So height of wall is 6 meter. Therefore, height of rectangular hole is equal to 6 meter. Now next question number 4.
Question 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 meter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out from this container? तो इसमें हमें ब्रिक्स दे रखी है, तो डायमेंशंस ऑफ ब्रिक की डायमेंशंस क्या है? लेंथ L equals to 22.5 centimeter, breadth B equals to 10 centimeter and height H equals to 7.5 centimeter और टोटल पेंट इन कंटेनर, टोटल पेंट इन कंटेनर, कंटेनर में टोटल पेंट कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब जो इस कंटेनर में पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकते हैं। तो हमें बतानी है कि इस कंटेनर से ऐसी कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी। तो पहले हम देखेंगे कि एक ब्रिक को पेंट करने में कितना एरिया लगेगा, ठीक है। तो TSA ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक में कितना पेंट लगेगा वो उसका क्या होगा? TSA। क्योंकि हमें 6 के 6 फेस को क्या करना है? 6 के 6 फेस को पेंट करना है ना, तो TSA आएगा 2 into LB plus BH plus HL 2 L 22.5 into 10 B 10 into 7.5 और 22.5 into 7.5। ये सब जो सोल्व करके आएगा, दिस इज 225, दिस इज 75 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 168.75 और जब इन तीनों को प्लस करेंगे 300 और 168 468.75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 14 plus 1 15 1 16 plus 1 17 1 12 plus 1 13 1 8 plus 1 9। तो ये बनेगा 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको सेंटीमीटर में बना लें। 9375/1000 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके बराबर? 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पेंट है और एक ब्रिक में इतना पेंट लगेगा, तो टोटल ब्रिक्स कितनी पेंट होंगी? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड आउट। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड by TSA of one brick. This is equals to 93750 और ये 937.50 ना, तो 50/100 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 bricks to be painted out from this container. This is the answer. In question 5 you have given a cubical box. एक तो हमारे पास क्या है? क्यूबिकल बॉक्स जिसकी एज कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर।
एच का मतलब ए, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब क्या होते हैं सेम। एंड सेकंड वन इज क्यूबॉइडल, cuboidal box. We are given two boxes. First one is cubical box and second one is cuboidal box, whose length is 12.5 meter, breadth is centimeter, 10 centimeter and height is 8 centimeter. In first part, which box has a greater lateral surface area? Lateral surface area का मतलब CSA. किसका CSA ज्यादा है और कितना ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे, इसका भी CSA निकालेंगे और इसका भी CSA निकालेंगे। जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। You have to do yourself this question. And in second part, which box has, in second part, which box has smaller TSA? किसका TSA कम है और कितना कम है? तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर देंगे और बताएंगे किसका कम है। तो ये भी हम क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, इसको खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a small indoor greenhouse is made entirely of glass panes held together with tape. एक ग्रीन हाउस बॉक्स हर्बेरियम से बनाया गया है और उसमें क्या लगाए गए हैं, ग्लास पेन्स मतलब शीशे लगाए गए हैं और बॉक्स बनाया गया है। और उन सब प्लेन्स को होल्ड रखने के लिए किसका यूज किया गया, टेप का। उस बॉक्स की जो लेंथ है, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज also 25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास? इस ग्लास का एरिया क्या होगा? इसमें 6 फेसेस है ना, तो एरिया ऑफ ग्लास क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट है इसका। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 into LB plus BH plus HL, 2 LB 30 into 25 B, 25 into 25 HL, 25 into 30। ये L है, ये B है और ये क्या है, H। 2 750 625 और 750 1500 plus 625 2125, this is equals to 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ग्लास का यूज किया गया इसके अंदर। सेकंड पार्ट, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस? अगर 12 एजेस है इसकी तो कितनी टेप यूज की गई? देखो जो भी बॉक्स होता है ना, जैसे ये बॉक्स है हर्बेरियम का, ग्लास पेंसिल वाला, तो इसके अंदर टेप कहाँ यूज हुई? यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन सब पे टेप लगाई गई ना एजेस पे। तो लेंथ ऑफ टेप कितनी यूज हुई? इसमें 4 तो लेंथ है, 1 2 3 4, 4 ही क्या है, ब्रेड, 1 2 3 4, और 4 ही क्या है, हाइट, 1 2 3 4। तो टोटल length of tape used equals to 4 length, 4 breadth और 4 ही क्या है इसके अंदर, हाइट। जैसे कोई भी रूम है, 4 तो लेंथ है, 1 2 3 4, और 4 ही क्या होती है उसके अंदर, ब्रेड्थ, और 4 ही क्या होती है, हाइट। तो 4 यहां से कॉमन आएगा, क्या बचेगा, L plus B plus H। L की वैल्यू 30
B25 और H25, 50 plus 30, 80. That is 320 centimeter tape is used in this herbarium box. Now next question is 7th question. Next, question number 7. Shanti Sweets store was placing an order of making cardboard boxes for packing their sweets. अपने स्वीट्स को पैक करने के लिए उसने कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज किया और ये बॉक्सेस दो टाइप के हैं, एक तो बिगर बॉक्स और एक स्मॉलर बॉक्स। अब जो बिगर बॉक्स है उसकी डायमेंशंस क्या है? लेंथ। बिगर बॉक्स की लेंथ दी है इसमें हमें 25 सेंटीमीटर, breadth also equals to 20 centimeter and height is equals to 5 centimeter. This is right. And this is smaller box. इसकी डायमेंशन लेंथ, स्मॉलर लेंथ कर लेते हैं इसको हम, ब्रेड्थ, और ये क्या है? हाइट। इसकी लेंथ दे रखी है हमें 15, 12, 5 सेंटीमीटर। For all overlaps, 5% of the total surface area used required extra. इन सभी बॉक्सेस की पैकिंग के लिए कितना कार्डबोर्ड इन दोनों बॉक्स में यूज होगा, उसका 5% उनको उनके ओवरलैपिंग में यूज होगा। ओवरलैपिंग का मतलब है कि इन बॉक्सेस की भी पैकिंग करके कहीं देखना है ना, तो उसमें जितना कार्डबोर्ड बॉक्स इनमें यूज होगा उसका 5% उनके ओवरलैपिंग में यूज होगा। If the cost of cardboard is ₹4 per 1000 centimeter square, और 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कॉस्ट कितना है? ₹4। Then find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. मतलब हर तरह के 250 बॉक्स अगर पैक करने हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा? मतलब ये जो बिगर बॉक्स है, these are 250 boxes and these are also 250 boxes। मतलब टोटल बॉक्स कितने बनाने हैं इसको? 500। तो इसमें एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा? 2 into LP plus BH plus HL, 25 into 20, 20 into 5 और 5 into 25. This is equals to 2, 500, 100, 125, 2, 725, 1450 सेंटीमीटर। एक बॉक्स में इतना कार्डबोर्ड यूज हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड इन
250 boxes, 250 into 1450 कितना आएगा ये? 145 की 25 से मल्टीप्लाई करें 725 90 तो 5 2 3625 और ये 0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड यूज होगा 250 बॉक्स। अब यहां भी देखेंगे कि स्मॉलर बॉक्स में 250 स्मॉलर बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड इन वन बॉक्स 2 LB BH HL। (15 into 12) 12 into 5 और 5 into 15। This is 2. 12 into 15 180. 12 into 5 60. This is 75. 240 plus 75 315। 240 और ये 75 5 31। ठीक है, तो ये आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड इन 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा? 250 into 630। अब 63 की मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे। 15 1 कैरी 31 6 12 5 7 5 8। दिस इज 15750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड यूज होगा किसमें? स्मॉलर बॉक्सेस में। अब इसके 250 बॉक्स में इतना एरिया, इसके 250 बॉक्स में इतना एरिया। देयरफॉर टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड इन 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप, दोनों तरह के 250 बॉक्स बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ? 362500 एंड 157500। इनको ऐड करेंगे हम 0 0 100 1 16 and 36 52 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया तो केवल बॉक्स बनाने में यूज हुआ, इतना कार्डबोर्ड। अब इनकी पैकिंग के लिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के लिए कितना यूज किया गया? जितना बॉक्सेस में यूज हुआ कार्डबोर्ड उसका 5%, 5% ऑफ 520000। This is equals to 5/100 into 520000। 00 से कैंसिल आउट, 5 into 5200 26,000 आ जाएगा। 26,000 इसमें यूज कर लिया और 5,20,000 बॉक्स बनाने में यूज होगा। तो टोटल कार्डबोर्ड कितना यूज हुआ? देयरफॉर टोटल कार्डबोर्ड यूज्ड 520000 plus 26,000. This is equals to 546,000 centimeter square. Now we calculate the cost of cardboard. We have given the cost of 1000
सेंटीमीटर स्क्वायर कितना 4 रुपीज, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 4/1000 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा 4/1000 into 5,46,000. This cancel out 4 into 5 4 6 24 2 18 1 2184 rupees. This is the answer. And now question number 8 is same like the previous questions, so you can practice question number 8 yourself. This exercise is completed. Thank you.